نہ واجبات کی پابندی، نہ اتباع سنت، لیکن مشہور ہے پیر صاحب، پیر صاحب لاکھوں کی تعداد میں مریدین ہے، انتقال ہو گیا، بھیڑ لگ گئی اور مزار بھی عالی شان بن گیا۔ ارے اندر تو پیر صاحب کی پٹائی ہو رہی ہے، مرید یہاں ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ بولیے ہے؟ پہلی شرط سن لو، پیر کی پہلی شرط وہ عالم دین ہونا ضروری ہے، اس کا عالم دین ہونا ضروری، پہلی شرط۔ اگر وہ عالم نہیں ہے، سید بھی ہے، تعظیم ضروری ہے، عزت ضروری ہے، ان کی برائی نہیں کریں گے، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ توہین نہیں کریں گے، ہاتھ بھی چومیں گے، لیکن پیر نہیں مانیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ پیر نہیں مانیں گے، پہلے وہ عالم بنے، پھر پیر کی پہلی سیڑھی میں وہ پہنچے گا، پہلی سیڑھی۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ تقوی والا ہو، فاسق نہ ہو، فاسق نہ ہو۔ فاسق کا مطلب، فاسق مولین کا مطلب نماز نہیں پڑھتا، بات سمجھ میں آئی؟ تاریک صلاۃ ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے۔ ارے جہاں غیبت کا معاملہ آئے گا نا تو اچھے چھنٹ جائیں گے، اس سے بچنے والے بہت کم ہیں۔ ارے مخدوم سمنانی جیسے پیر سے پوچھو حضور پیر کون؟ اگر کوئی مخدوم سمنانی کے پاس مرید ہونے کے لیے آتا تو آپ کانپ جاتے تھے، کانپ جاتے تھے، مرید ہونے کی بات سے کانپنے لگتے تھے، فرماتے تھے ارے اب مرید کہاں، اب پیر کہاں؟ پیر تو تھے صدیق اکبر، مرید تھے صدیق اکبر، اور پیر تھے نبی۔ صدیق اکبر جیسا مرید اب کہاں، اور نبی جیسا پیر کہاں؟ اب پیر کہاں، مرید کہاں؟ چلو آؤ، ہم بھی گنہگار ہیں، تم بھی گنہگار ہو، ہم دونوں مل کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتے ہیں۔ یہ ہمارے مخدوم غوث العالم کا، غوث العالم، اب آپ سمجھ لیجیے، وہ غوث العالم کہ غیب سے ندا آتی ہے، اشرف میرا محبوب ہے، ان کے خوف کا عالم یہ ہے، ان کے در کا یہ عالم ہے۔ اور کبھی جمعہ میں پھنس گئے تو پڑھ لیے پیر صاحب، عیدین کی امامت ہے اس لیے عیدین پڑھ رہے ہیں، وہ پیر صاحب کہتے ہیں دامن تھام لو بیڑا پار ہو جائے گا۔ بولیے، پہلی شرط علم دین ہو، عالم دین ہو، دوسری شرط فاسق نہ ہو، گنہگار نہ ہو، غیبت کرنے والا نہ ہو، چغل خوری کرنے والا نہ ہو، حرام کھانے والا نہ ہو، دھوکہ دینے والا نہ ہو، گناہوں سے بچنے والا ہو، فرائض و واجبات کو ادا کرنے والا ہو، ان سے کم یہ ہو۔ دوسری شرط ہو گئی، اور تیسری شرط اس کا سلسلہ نبی پاک سے لے کر اس تک متصل ہو، کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہو، کہیں سے کڑی جنجیر کی ٹوٹی ہوئی نہ ہو۔ اگر کڑی کہیں سے ٹوٹ جائے گی تو فیض کا سلسلہ ہی بند ہے، اس لیے وہ مرید نہیں ہو سکتا، پیر وہ نہیں ہو سکتا، اور اس سے ہم مرید بھی نہیں ہو سکتے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟
का उनके पीर का पता, न खिलाफत का पता, न सिलसिले का पता, गली गली घूम रहे हैं। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, ये गुमराहियां हैं। क्या है? गुमराहियां। इनसे बचोगे कैसे? नुस्खा दे दूं ना, बस आखिरी बात, नुस्खा ले लो। बचोगे तो जामिया फातिमतुज ज़हरा और फातिमतुज ज़हरा जैसा, जामिया फातिमतुज ज़हरा जैसा इल्मी इदारा पूरे इलाके में उसका जाल बिछा दो। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों? हमारा मदरसा तो है, क्या बात, हर गांव में मदरसा है ना। और अब तो हाल ये है, हर गांव में 2-3 मदरसे चलते हैं। लेकिन जितना मदरसा बढ़ता चला जा रहा है, कौम में जहालत उतनी ही बढ़ती चली जा रही है, गुमराही उतनी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। वजह क्या है? वजह यह है कि हम अपनी औलाद में से हम अपने बेटों को आलिम तो बनाते हैं, आलिम बनाते हैं, ठीक है, उस बेटे से उसकी जात सुधर गई, वो सुधर गया, जरूरी नहीं है उसकी सारी औलाद सुधर जाए, वो सुधर गया। तो एक आलिम अगर बनता है, बेटे को आपने आलिम बनाया, तो ये हो सकता है कि वो घर सुधर जाए, उस घर का दीनी माहौल हो जाए, अकीदा पूरे घर का महफूज हो जाए, गुमराही से पूरा घर बच जाए। लेकिन जब एक बेटी, तवज्जो दीजिएगा, जब एक बेटी आलिमा होती है, कुरान की आलिमा होती है, हदीस की मुहद्दिसा होती है, तफसीर की मुफस्सिरा होती है, फतवे की मुफ्तिया होती है, इल्मे शरीयत की हामिल होती है, तो जब वो बेटी माँ बनती है तो उस माँ से एक नस्ल का अकीदा सुधरता है, एक नस्ल सुधरती है, एक नस्ल गुमराही से महफूज रहती है। इसी वजह से अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र में पहुंचने तक। पहले क्यों कहा माँ की गोद से? ये पहले कहा गया माँ की गोद से, ये नहीं कहा गया कि बाप की मजलिस से। ये भी तो कहा जा सकता था इल्म हासिल करो उस्ताद की मजलिस से, इल्म हासिल करो दरसगाह और मदरसा से। लेकिन नबी ने फरमाया इल्म हासिल करो माँ की गोद से, यानी तालीम की इब्तिदा होनी चाहिए माँ की गोद से, उसके बाद तुम्हारा सिलसिला जारी रहना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि तुम इल्म में कामिल हो गए, मुकम्मल हो गए, बल्कि मरते दम तक अपने आप को तालिब इल्म समझते रहो। इल्म दीन हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र में पहुंचने तक। तो कब्र में पहुंचने तक हम अपने आप को तालिब इल्म समझते रहे, दीन को फरोग होता रहेगा। जब इल्म दीन को फरोग होगा तो दीन को फरोग होगा, और जब इल्म दीन उठा लिया जाएगा तो मेरे दोस्तों क़यामत आ जाएगी। हज़रात ग्रामी, अब बस आखिरी बात, ये जो जामिया फातिमतुज ज़हरा लिल बनात है ना, कुछ लोग पूछते हैं ना इसकी बिल्डिंग कहाँ? क्या बात है, क्या बात है, ये कहाँ चलता है ना? पूछते हैं ना कहाँ चलता है, कौन सी बिल्डिंग है ना? जी जी, उनको देख लेना चाहिए। ये मंजर अगर देख लिया तो अब पूछना नहीं चाहिए कि कहाँ चलता है। क्या बात है, क्या बात है, पूछना चाहिए। बोलिए, इस्लाम में मुझे बताया जाए कि ये मदरसा जो ये मौजूदा शक्लो सूरत में है, बिल्डिंग, ये मकान, ये इमारत, बोलो प्यारे नबी ने उलमा की एक जमात कायम फरमाई, कुरान के आलिमों की जमात बनाई,
बड़ा जामिया था, वही मस्जिद नबवी थी, उसमें एक चबूतरा था, उसी में एक चबूतरा था, वहीं से अबू बकर सिद्दीक अकबर बन के निकले, वहीं से उमर फारूक आजम बन के निकले, उस्मान गनी जुल्लुरैन बनकर निकले, मौला अली बाबुल इल्म बन के निकले। उसी चबूतरे से वही मदरसा था, वही जामिया था। हमने देखा हमारे कारी सुलेमान साहब ने एक चबूतरा नहीं पकड़ा, दो चबूतरा भी पकड़ा है, और 2 चबूतरे से उन्होंने जो नतीजा निकाल करके दिखाया कौम के सामने, मैं समझता हूं ऐ लोगों, अगर तुमने इस नेमत की कदर नहीं की तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी नेमतें तुमसे छीन लेगा। इसलिए कि अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम शुक्र करोगे तो नेमतें बढ़ाएंगे, शुक्र नहीं करोगे तो नेमतें छीन ली जाएंगी। ये नेमत बन करके तुम्हारे पास आ गए हैं। कारी सुलेमान को तुम लोगों ने क्या समझा? कारी सुलेमान हमारा भाई है ना, इसलिए मैं कह रहा हूं कारी सुलेमान शोबे क़िराअत के उस कारी का नाम है जिसका सिलसिला तालीम एक ऐसे घराने से मिलता है जिस घराने ने हिंदुस्तान में लोगों को कैसे कुरान पढ़ा जाए वही सिखाया है। कारी अहमद जिया का खानदान अगर ना होता, मैं समझता हूं इल्मे क़िराअत जिंदा ही नहीं रहता हिंदुस्तान में। कारी अहमद जिया जैसे रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उन जैसे जलीलुल कद्र उस्ताद के शागिर्द रशीद का नाम है कारी सुलेमान। सोचते होगे लॉकडाउन में मदरसा खत्म हो गया, ये लोग घर पे आके बैठ गए, ये सारे भाई तीनों भाई आके बैठे हुए हैं। अरे कारी सुलेमान मुल्क के मशहूर से मशहूर बड़े से बड़े इदारे में जाकर के अपने इल्म का जौहर लुटा सकते हैं। हाफिज शाहिद रजा हिंदुस्तान के किसी मदरसे में जाकर हिफ्ज़ कुरान की तालीम दे सकते हैं, लेकिन ये क्यों नहीं जा रहे हैं? ये देख रहे हैं हमारे इलाके का हाल बहुत ही बुरा है। यहाँ जहालत ही जहालत है, गुमराही ही गुमराही फैलती जा रही है। इसलिए दर्द है, वतन है, ये इस मिट्टी में पैदा हुए हैं, दर्द है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, सुन लो अच्छी तरह कान खोल कर, कि अगर तुमने अपनी बेटियों के गोद को कुरान के इल्म से मामूर नहीं किया तो फिर वो दिन आएगा, पछतावे से कुछ नहीं मिलेगा, वक्त गुजर चुका होगा मेरे दोस्तों और बुजुर्गों। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, सवाल आप ये ना करो कि मदरसा कहाँ चलता है, सवाल हम आपसे करेंगे कि इतनी बच्चियों को आज इस मंजिल पे ला करके कारी सुलेमान ने खड़ा कर दिया है। कारी सुलेमान की मेहनतें तुम अपनी निगाहों से देख रहे हो, हमको पूछने का हक है। कल हम पूछेंगे तुमसे, बोलो इसकी बिल्डिंग कहाँ है? वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या बात। हम पूछेंगे, तुम हमसे पूछ रहे हो? क्या बात। गैरत मर चुकी है क्या? शर्म और हया खत्म हो चुकी, हमसे पूछ रहे हो? मदरसा कहाँ है, बिल्डिंग कहाँ है? हम पूछेंगे बिल्डिंग कहाँ है। अब वो वक्त आएगा, हम पूछेंगे आपसे, आपका दामन पकड़कर कि हमने तो यहाँ तक पहुँचा दिया है, आपने क्या किया उसका सबूत दीजिए। मेरे दोस्त और बुजुर्ग, मैं इन्हीं बातों पर मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। ये जंग जज्बात के साथ हक़ाइक़ की तर्जुमानी थी, मैंने कर दी। मौला तबारक व तआला हम सबको हिदायत के राह पर गामज़न फरमाए, कायम और दायम रखे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बस थोड़ी माजरत के साथ जारिक शेख आए हैं जिनके दरवाजे पे ये जामिया फातिमा ज़हरा चल रहा है।
जारिक शेख आइए, जारिक शेख से गुजारिश है हुजूर की गुलपोशी कीजिएगा। कि आइए। जारिक शेख हैं, नवाज शरीफ हमारे दोस्त हैं, मालदा बंगाल से तशरीफ लाए हैं। हुजूर नवाज शरीफ हुजूर की ज़ियारत के लिए आए हैं। मालदा गुजारिश है कि हुजूर का हजरत का गुलपोशी से टाइम बहुत इस्तकबाल कम है, करें। 10 मिनट में हजरत जाना चूंकि जनाब ट्रेन है ना। टाइम नहीं है, 1:17 हो गया। अब्दुल रशीद साहब आपसे भी गुजारिश है जल्दी कि इसका तुरंत गुलपोशी से- अब्दुल रशीद साहब से गुजारिश है कि गुलपोशी से इस्तकबाल करें। अब्दुल रशीद साहब आ जाएं, तशरीफ ले आए। अब वो ट्रेन इतनी लाजमी है मेरे लिए, तो कल का प्रोग्राम कवर है। अब वो छूट गया तो आ जाए। मौलाना शब्बीर साहब से गुजारिश है कि हजरत का गुलपोशी से इस्तकबाल करें। हमारे गुटावी साहब जमाल रजा गुलटवी साहब से गुजारिश है कि हुजूर का गुलपोशी से इस्तकबाल करें। जी जी, मौलाना साबिर साहब मौलाना साबिर साहब से गुजारिश है कि हजरत का गुलपोशी से इस्तकबाल करें। और जारिक शेख अपनी बच्चियों को गुलपोशी से इस्तकबाल करा लें। इनकी बच्चियां इनके दरवाजे ही पढ़ती हैं। जारिक शेख ये नहीं खुल रहा है क्या? बच्चे खोलो इसको। हाफिज़ा उधर करेंगे हजरत। हाँ जी हाँ। इन्हीं के दरवाजे पे बच्चियां पढ़ती ये जारिक शेख है, इन्हीं के बिल्डिंग में, इन्हीं के दरवाजे में ये बच्चियां तालीम हासिल कर रही हैं। ये अपनी तरफ से बच्चियों का गुलपोशी करेंगे, इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारा लगाइए। अरे मजमा कम हो मगर मजमा में दम हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत।